हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज 6.3 कंटिन्यू करेंगे। S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR. S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR, correct? Such that angle P is equal to angle RTS. Angle P is equal to angle RTS. ठीक है, ये छोटे ट्रायंगल में एंगल RTS हमने क्या किया है, TS को ST को जोड़ दिया है। ठीक है, शो दैट ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS. दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS, मतलब ये पूरा ट्रायंगल दिस इज सिमिलर टू दिस छोटा ट्रायंगल RTS. ठीक है, नाउ T is a point on QR and S is a point on PR such that angle QPR is equal to angle STR or angle P is equal to angle RTS. Correct? This is given in the question. So, in triangle RPQ and triangle RTS हमने यही दो ट्रायंगल्स क्यों लिए? क्योंकि हमें इन्हीं दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है. करेक्ट? तो आप और कोई ट्रायंगल लोगे तो गलत हो जाएगा आंसर आपका. इसीलिए वही दो ट्रायंगल्स लो जो आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपको सिमिलर प्रूफ करना है. You know that in triangle PQR and triangle RTS, angle RPQ is equal to angle RTS given in the question. Correct? Angle PRQ is equal to angle TRS, common angle. Angle PRQ is equal to angle TRS. ये क्या हो जाएगा? common. Therefore, triangle RPQ is similar to triangle RTS using the AAA similarity rule. कौन सा हमने similarity rule लिया यहाँ पे? Angle similarity rule. Very easy sum. Correct? Very easy. Next. Now, if triangle ABE is congruent to triangle ACD, ये symbol आपको याद आया? congruency का है. If triangle ABE is congruent to triangle ACD, is congruent to this triangle ACD, show that triangle ADE is similar to triangle ABC. Show that triangle ADE is similar to triangle ABC. Correct? So now solution. You know we have that triangle ABE is congruent to triangle ACD. Correct? So therefore since the two triangles are congruent, मतलब उसके corresponding parts भी equal होंगे. So that is their corresponding parts are equal. That is AB is equal to AC. AE is equal to AD. Correct? AB is equal to AC. AE is equal to AD. Correct? तो अब आपको यहाँ पे एक proportion मिल जाएगा. That is AB upon AC is equal to AE upon AD. करेक्ट? यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है. कौन से दो ट्रायंगल्स को? ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC. सो इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपको प्रपोर्शन साइड्स भी चाहिए होंगे, प्रपोर्शनेट साइड्स. इसीलिए हमने कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट से क्या प्रूफ किया? हमने खाली इस दो ट्रायंगल्स के रिलेटेड साइड्स को ही हमने सिमिलर इक्वल प्रूफ किया. दैट इज AB इज इक्वल टू AC एंड AE इज इक्वल टू AD. समझ में आया? क्योंकि हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है? कौन से दो ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करना है? ADE एंड ABC. करेक्ट? सो फ्रॉम दिस एंड दिस AB अपॉन AC इज इक्वल टू AE अपॉन AD. करेक्ट? दिस implies AB upon AC is equal to AE upon AD. That is AB upon AD is equal to AC upon AE. Why? Because AE is equal to AD given in the question. Correct? So आप यहाँ पे AD की जगह पे AE लिख सकते हो. Correct? समझ में आया? और यहाँ पे हमने क्या किया कि AE जो था वो हम डिनोमिनेटर में ले आए. क्यों? क्योंकि यहाँ AD इज इक्वल टू AE है. करेक्ट? सो दैट इज AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE. समझ में आया? वाई? बिकॉज AE इज इक्वल टू AD. करेक्ट? सो दैट इज नाउ इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, AB upon AD is equal to AC upon AE.
AB upon AD, AB upon AD is equal to AC upon AE, करेक्ट? समझ में आया क्या क्या हमने? AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE, एंड यहाँ पे एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, दैट इज एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल BAC, दैट इज द कॉमन एंगल. Correct? Therefore, triangle ADE is similar to triangle ABC using the SAS similarity rule. That is, आपको यहाँ पे यही शो करना है, triangle AD is similar to triangle ABC. So therefore, triangle ADE is similar to triangle ABC using the SAS rule, correct? Using the SAS rule. समझ में आया? Next, now altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो ट्राइंगल ABC है उसके जो दो ऑल्टीट्यूड्स है, दैट इज AD और CE, करेक्ट? ये AD और CE आपस में पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों पॉइंट P पे मिल रहे हैं. आपको ये शो करना है कि ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP. कौन सा? ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP. ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB. ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADP, ये पूरा. एंड AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB. नेक्स्ट, triangle PDC is similar to triangle BEC. Triangle PDC is similar to triangle BEC. And fourth, समझ में आया? Triangle PDC is similar to triangle BEC. Triangle PDC is similar to triangle BEC. So now let's start with the solution. Now अब यहाँ एक बार ये फिगर अच्छे से देखो, आपको यहाँ पे कुछ भी मेजर मिल रहा है, कुछ भी देखो मिल रहा है. क्या? एंगल D एंड एंगल E क्या है? 90 डिग्रीज. वाई? बिकॉज CE एंड AD आर द ऑल्टीट्यूड्स. देयरफॉर एंगल D इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, करेक्ट? सो नाउ इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, आपको मैंने बोला है जो ट्राइंगल्स आपको सिमिलर प्रूफ करने पहले आप वो लेना. तो हम यहाँ क्या ले रहे हैं? AEP एंड CDP. क्यों? क्योंकि हमें फर्स्ट यही प्रूफ करना है कि ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP. तो आप ये दोनों ट्राइंगल्स लोगे तो क्या मिलेगा? एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP. वाई? बिकॉज ईच 90 डिग्रीज. एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPC, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सो यूजिंग द AA सिमिलैरिटी रूल, ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP. समझ में आया? वेरी इजी. देखो, जब आपको पता है कि आपके पास कोई साइड नहीं है जिससे कि आप कोई प्रपोर्शन नहीं कर पा रहे एंड आपको दो एंगल्स मिल गए, सो दैट इज सफिशिएंट टू प्रूव सिमिलैरिटी. ठीक है, क्योंकि AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन होता है. जरूरी नहीं है कि आपको थर्ड एंगल भी फाइंड करना हो. अगर आपको दो एंगल्स मिल रहे हैं, सो यूजिंग द AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यू कैन प्रूव दैट बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. ओके. सेकेंड, आपको क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल CBE, करेक्ट? ये आपको प्रूव करना है. So now in triangle ABD and triangle CBE, in triangle ABD and triangle CBE, angle ADB is equal to angle CEB, each 90 degrees. Angle ABD is equal to angle CBE, कॉमन. समझ में? हम कौन सा दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं? हम ले रहे हैं ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE. ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE. ठीक है, तो ये दो एंगल्स 90 डिग्री प्रूव हो गए, ये कॉमन एंगल प्रूव हो गया, दो एंगल्स मिल गए. सो यूजिंग द AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDE. समझ में आया? नेक्स्ट, नाउ थर्ड, आपको क्या प्रूफ करना है?
triangle AEP is similar to triangle ADB. That is, triangle AEP is similar to triangle ADB. Correct? So now you know that angle AEP is equal to angle ADB, each 90 degrees. Also, angle EAP is equal to angle DAB. Common, दो angles मिल गए. So using the AA similarity criterion, triangle AEP is similar to triangle ADB. समझ में आया? वेरी इजी, सिमिलर टाइप. नेक्स्ट, लास्ट सब पार्ट, ट्राइंगल. अब आपको कौन सा प्रूफ करना है कि ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEC. ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEC. करेक्ट? सो नाउ एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल BEC इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. करेक्ट? And angle DCP is equal to angle BCE. Common. Therefore, using the AA similarity criterion, triangle PDC is similar to triangle BEC. Correct? समझ में आया? यहाँ पे हमने जितने भी चारों सब पार्ट्स देखे उसमें सेम था. किस पे था? खाली 90 डिग्रीज एंड कोई एक एंगल कॉमन हो रहा था. करेक्ट? वेरी इजी सम, वेरी स्कोरिंग. ठीक है. नेक्स्ट, now E is a point on side AD produced. E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD. मतलब पहले आप सबसे पहले क्या बनाओगे? पैरेललोग्राम ABCD. ठीक है, यहाँ मैंने पैरेललोग्राम सबसे पहले ABCD बनाया. अब AD को जब आप प्रोड्यूस करोगे तो आपको एक E पॉइंट मिलेगा. ठीक है. सो E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CE at F. अब ये BE जो आपको पॉइंट मिला AD को एक्सटेंड करके, उसको B से ज्वाइन करो तो ये लाइन आपको BE मिली. तो बोल रहा है कि जो ये लाइन BE है, जब वो साइड DC को कट कर रहा है तो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट को हम क्या देंगे? F. ठीक है. Show that triangle ABE is similar to triangle CFB. Triangle ABE is similar to triangle CFB. ठीक है. So now let's start solution. In triangle ABE and triangle CFB, angle BAE is equal to angle FCB. Why? In a parallelogram, opposite angles are equal. ये theorem आपको पता है. So क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, therefore इसके opposite angles equal होंगे. That is angle BAE is equal to angle FCB. Correct? And angle AEB is equal to angle CBF. Angle AEB is equal to angle CBF. Why? Because ABCD is a parallelogram and AB is parallel to CD. Correct? तो AD क्या हो गया? BE क्या हो गया? ट्रांसवर्सल. Since AB is parallel to DC and BE is the transversal, therefore alternate angles will be equal. Therefore, angle AEB is equal to angle CBF. Correct? Now, using the AA similarity criterion, triangle ABE is similar to triangle CFB. समझ में आया? Triangle ABE is similar to triangle CFB. So what have you learned today? आज हमने आपके एक्सरसाइज 6.3 कंटिन्यू किया. ये बड़ा एक्सरसाइज है, इसके लिए हम और 2 सेशंस में कंटिन्यू करेंगे. टिल देन हैव अ वेरी गुड प्रैक्टिस ऑफ दिस, क्योंकि आप देख रहे हो कि क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, सिमिलर टाइप है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, कोई चेंज नहीं है. तो 1-2 सम्स आपको आ जाएंगे तो सारे सम्स आप खुद से सॉल्व कर पाओगे, प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड ईच ऑफ देम. ठीक है. हैव अ गुड रिविजन. थैंक यू.